Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is for class 12th, subject physics, and the topic is potential energy of dipole placed in uniform electric field. In the previous lecture, we have discussed about the torque acting on the dipole when it's placed in uniform electric field. And we know that when an electric dipole is placed in uniform electric field, two forces acts on the dipole. These two forces being equal in magnitude but opposite in direction, which we have already discussed in the previous lecture. Now these two forces forms a couple, and the moment of couple that generates a torque, which we have already discussed in the previous lecture. That generates a torque, and that torque is given by, we have already calculated this torque. So this torque is denoted by tau, that is equal to Pe sine of theta. Pe sine of theta. Now here we consider uniform electric field. We know that uniform electric field is that field in which the spacing between the electric lines of force that is same. If that is same, then we can say it's a uniform electric field. If the spacing between the electric lines of force that's not same, that's different, so we can say it's non-uniform electric field. So here we consider a uniform electric field. Now, an electric dipole is placed in the uniform electric field. So when this electric dipole is placed in uniform electric field, we know that this electric dipole is a system of two equal and opposite charges. So it has a positive charge and negative charge, and there's a length between these two charges, which is known as a dipole length. So that dipole length is 2L. Now, when this electric dipole is placed in uniform electric field, now force acts on this positive charge in this direction with a force. That force is equal to plus EQ. So that is equal to EQ. So because here we have a positive charge, we know that this electric field, it starts from the positive charge and moves towards the negative charge. So here we have a positive plate, and here we have a negative plate. So in between the positive and negative plate, there is an electric field. So here it is the positive charge. Now this positive charge, it exerts force on this positive charge in this direction. So there it is the force of repulsion. So the force that is equal to EQ. Similarly, this positive charge, it attracts this negative charge. So here it's a negative charge in this direction. So force जो होगा, that is equal to minus times EQ. Now these two forces, force EQ and minus EQ, they are equal in magnitude but opposite in direction, because we have uniform electric field. So the magnitude of force, that will be same, but the direction will be opposite. For example, if we place a marker here, it's an electric dipole. So when we place it here, so in the uniform electric field, so due to the couple of forces, so it forms a couple. So it will rotate and generates a torque, and it generates a torque. So ये यहाँ की तरफ होगा और यहाँ पर ये यहाँ की तरफ होगा. So this torque, it tries to align the dipole along the electric lines of force in the equilibrium state. But our topic is potential energy of dipole which is placed in uniform electric field. First of all, we should know that क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है, और कब पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट होती है. तो आपको मालूम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी तब एग्जिस्ट होती है if we work on a body, or we can say if we displace a body against the force. For example, मेरे हाथ में इस वक्त मार्कर है, मेरे हाथ में पेन है इस वक्त, ठीक. तो मैंने इसको होल्ड करके रखा है यहाँ पर हाथ में. तो अगर मैं इसको होल्ड करके नहीं रखूंगा, सो इट विल फॉल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. सो दैट मीन्स इस वक्त काम जो हो रहा है अगेंस्ट द force of gravity, against the force of attraction. So that means this marker, it possesses the potential energy. Similarly, so we have placed this electric dipole in uniform electric field at this angle. यहाँ पर हमने इसको होल्ड करके रखा है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को होल्ड करके रखा है. तो टार्क जो है वो नीचे की तरफ है, वो यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से नीचे की तरफ है. इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इसको होल्ड करके नहीं रखूंगा, ये तो नीचे की तरफ आएगा. तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर और एक फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज अगेंस्ट द
टॉर्क, अगेंस्ट द टॉर्क। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने वर्क डन किया है, या किसी एक्सटर्नल एजेंसी से हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर होल्ड करके रखा है, बट दैट एक्सटर्नल एजेंट जो है, सो दैट इज द फोर्स बट अगेंस्ट द टॉर्क, अगेंस्ट द टॉर्क। सो दैट मींस वर्क हैज बीन डन हियर, तो यहाँ पर काम हो रहा है। सो दैट वर्क डन इज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन जो होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। Now, so we will derive the potential energy of an electric dipole. So here, if this electric dipole, चाहे आप यहाँ पर इस तरह इस एंगल पर रखेंगे या आप इस एंगल पर रखेंगे, आप इस तरह भी रख सकते हैं, इस एंगल पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस क्यू है, तो ये आप यहाँ पर कहेंगे इट्स प्लस क्यू। सो वी डिस्प्लेस दिस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में था, हमने इसको डिस्प्लेस किया, यहां तक लाया, फिर हमने और डिस्प्लेस किया, यहां तक लाया। इसका मतलब है कि हमने इसका एंगल चेंज किया यहाँ पर। सो वर्क हैज बीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन in order to rotate the dipole, or in order to displace the dipole from initial position to final position, or we can say to angle d of theta. So we can say here it is d theta. So that means when we displace the dipole in uniform electric field against the torque, so work has been done, small amount of work has been done. So that small amount of work done, we will write here dw, that is equal to जैसे कि आपको मालूम है कि वर्क डन जो होता है that is the force into distance, जैसे work that is equal to force into displacement, so जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, for example we have a body here, हमारे पास एक body है that's on the table. Now this body has weight mg, it has weight mg. So this weight mg, that is the force in the downward direction, but we displace this body, हम इस body को उठा रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं तो यहाँ तक ला रहे हैं, तो displacement हमने यहाँ पर h किया है, और जो वर्क डन जो होगा that will be equal to force, जो force यहाँ पर है तो वो हमने mg लिया है, क्योंकि हमने उतना ही force किया है कि equal to mg, और हाइट जो इसकी है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी है, दैट इज इक्वल टू h. सो दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस बॉडी एज द पोटेंशियल एनर्जी, और आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू mgh, वो mgh के ही बराबर होती है। एंड वो और हमने फोर्स जो यहाँ पर अप्लाई किया है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स जो है दैट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द the displacement of the body जो है that's along the direction of the force. तो similarly, मगर यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है दैट इज अ रोटेटिंग फोर्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर जो हमने डी थीटा से यहाँ पर डिनोट किया है। सो दिस इज द रोटेटिंग वर्क, वी कैन से इट एज अ रोटेटिंग वर्क। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस दिस dipole in the uniform electric field but against the torque, so that will be equal to, जो यहाँ पर force है that is the torque, so we'll write here tau into distance जो हमारे पास है, displacement जो है that's the angular displacement, so we call it as d theta. So already हमने यहाँ पर tau निकाल कर रखा है, so dw that is equal to tau, so that is equal to pe साइन ऑफ थीटा डी थीटा। सो ये हमारे पास इक्वेशन ए है। नो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने डाइपोल को प्लेस किया है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट थीटा 1 initially for example initially the dipole is placed in the uniform electric field at an angle of theta 1. Now सो ये एंगल जो यहां पर बन रहा है, ये बन रहा है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको बना रहा हूं यहां पर एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट। आपको मालूम है कि नाउ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इट हैज अ डाइपोल मोमेंट, सो डाइपोल मोमेंट p जो हम p से डिनोट करते हैं। सो एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट दैट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। सो द एंगल जो होगा दैट विल बी बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हम इसको फर्दर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फिर अब यहां से आपने तो इनिशियली ये इस डायरेक्शन में था, तो आपने यहां पर इस डायरेक्शन में लाया, थीटा 1 आपको यहां पर एंगल आया, ठीक। नाउ वी अगेन डिस्प्लेस दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल
इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमने इसको लाया, तो आपने यहाँ पर कहा कि ये जो एंगल होगा यहाँ पर, सो दिस विल बी थीटा टू, थीटा टू। तो यहां पर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं निकालना चाहते हैं, कि हम यहां पर निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो आप यहां पर लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल टोटल वर्क डन, जो टोटल काम आपने किया है यहां पर इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द डाइपोल, सो थीटा वन टू थीटा टू, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम यहां पर निकालना चाहते हैं। सो टोटल अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन इन ऑर्डर टू displace an electric dipole, from theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2. So we write here, W is equal to, so integral of dw, that will be equal to इंटीग्रल ऑफ थीटा वन टू, तो इंटीग्रल का मतलब है यहाँ पर कि सम ऑफ ऑल द वर्क, जितना भी हमने काम किया है यहाँ पर इन ऑर्डर टू रोटेट द डाइपोल इन बिटवीन थीटा वन टू थीटा टू, तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा थीटा वन टू थीटा टू। सो डी डब्ल्यू जो हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा और डी थीटा, p sin of theta d theta, or we can write here w, that is the amount of work done, that will be equal to integral of theta 1 to theta 2 p e sine of theta or d theta. Now p, that is the dipole moment, so dipole moment, that's constant, we can take it out, and electric field, that's a uniform electric field, the constant electric field, so we can also take it out, isko bhi hum bahar nikal sakte hain. So we'll write here w is equal to w, that is equal to p को हम बाहर निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम E को भी हम बाहर निकालेंगे, सो दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 साइन ऑफ थीटा d theta, साइन ऑफ थीटा d theta, or we can write here w is equal to p e. Now we know that now we have to integrate it. We know that integration of sine of theta, that is minus cos of theta. तो आप याद रखेंगे integration of sine of theta d theta, that is equal to minus cos of theta. So here we write minus cos of theta. So limit shift होते हैं right side में, so it will be theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2. Or here we write here so w is equal to, so we can take minus out, so p e and here it will be cos of theta 1 to theta 2, or we can write w is equal to minus times p e. So we'll apply the limits. We know that पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, so this will be equal to cos of theta 2 minus times cos of theta 1, cos of theta 1. No, this is the expression for the potential energy. So this is the potential energy stored in the dipole when it's rotated in the uniform electric field in between the angle theta 1 to theta, angular displacement जो इसका होगा, that will be theta 1 to theta 2. तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है in order to rotate the dipole.
तो कुछ स्पेशल केसेस हम लेंगे यहाँ पर, और आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल टू W, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स PE cos of theta 2 minus cos of theta 1. So this is the potential energy stored in the dipole, in an electric dipole. So we'll take some special cases here. Case first हम लेंगे, special cases, case first हम लेंगे. तो आप यहां पर कहेंगे इनिशियली द डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आप इसको प्लेस कर रहे हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एंगल. सो दैट मींस द थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो यहां पर डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो दैट विल बी 0 डिग्री. इसलिए हम यहां पर लेंगे इफ this theta 1 that is equal to 0 degree, that is equal to 0 degree. Similarly, ठीक है, तो अब जो थीटा 2 है, सो इसको हम यहां पर लेंगे थीटा 2, सो दैट विल बी सम एंगल दैट इज थीटा. अगर आप थीटा 1 इनिशियली आप डाइपोल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इनिशियली प्लेस कर रहे हैं along the electric lines of force at some angle, but that angle is 0 degree. Now we rotate this dipole in towards this, so that angle will be the final angle, so that will be theta 2. So we represent it by theta. So then from this expression we'll write here potential energy that is equal to, so minus times Pe cos of theta 2. What is theta 2? So that is theta minus times cos of theta 1, so that is 0 degree, that is 0 degree. So potential energy is equal to minus times Pe into cos of theta minus, so we know that this cos of 0 degree, that is equal to 1, so we'll write here 1. So ये potential energy of the dipole when the dipole is initially placed along the lateral lines of force. जैसे अगर आप इसको डायग्राम के लिए देखेंगे, आप इसको डायग्राम के लिए भी देख सकते हैं. तो अगर हमारे पास ये electric lines of force, so it's the electric field, so single line represents the electric field. तो फिर पहले आप देखेंगे ये जो हमारे पास, so theta is equal to 0 degree. That means that this electric dipole is placed in uniform electric field along the electric lines of force, along the direction of field. So आप यहाँ पर इस तरह दिखाएंगे, so ये जो है ये आप इस तरह दिखाएंगे, so this is the electric dipole, so that means ये 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है. अगर ये माइनस क्यू चार्ज है या ये प्लस क्यू चार्ज है, so तो आप लेंगे ये माइनस क्यू चार्ज. तो इस तरह आप दिखाएंगे. सो एट थीटा 1 जो है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. फिर आप क्या कहेंगे कि यहां पर आप देंगे थीटा 2 दैट इज इक्वल टू थीटा. सो आप फिर यहां पर इस तरह दिखाएंगे, ये आप दिखाएंगे, ये आपने लिया है, ये इसको आप यहां पर बॉर्डर लाइन से दिखाएंगे. सो दिस विल बी प्लस क्यू एंड दिस विल बी माइनस क्यू. तो यहां पर जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा, यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा. तो यहाँ पर जो एंगल थीटा 1 था दैट वाज 0, पहले यहाँ पर आपने लिखा. सो ये इसके लिए है when theta is equal to theta 1 is equal to 0 degree and theta is equal to q, theta is equal to theta 2 is equal to theta to some angle, कोई एंगल हम लेंगे यहाँ पर. सो इट वाज द फर्स्ट केस. अब इस केसेस के ये जो फर्स्ट केस हमने लिया है, इसके सब केसेस हम लेंगे यहाँ पर. तो सब केसेस लेंगे. तो केस फर्स्ट का सब केस है, तो आप लेंगे पार्ट ए, सब केस पार्ट ए. इसमें आप लेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डायरेक्ट अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन है, तो इसी के सब केस हम लेंगे यहाँ पर. सो इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा जो होगा इफ इट इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, किसके बराबर होगा? अगर ये 90 डिग्री के बराबर होगा, सो उस वक्त देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. सो देयरफॉर potential energy will be equal to minus times PE. So this will be cos of 90 degree, cos of 90 degree minus 1, or we can write potential energy is equal to, we know that cos 90 that is 0 degree,
cos of 90 degree, that is equal to 0. That is equal to 0. So we write here minus times P E into, so this will be 0 minus 1, or we can write P E is equal to, so this will be plus P E. अगर इसको डायग्राम के लिए देखेंगे तो यहां पर हम लेंगे दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से। तो फिर थीटा जो हमारा है, सो दैट मींस जो इलेक्ट्रिक जो हमारा थीटा है दैट्स 90 डिग्री। इट मींस दैट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इट्स प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आप यहां पर इस तरह दिखाएंगे, तो ये आप दिखाएंगे यहां पर, ये आप दिखाएंगे अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और जो एंगल है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 90, और जो एंगल आप लेते हैं यहाँ पर दैट्स बिटवीन द डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। सो एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इलेक्ट्रिक इसके दरमियान आप दिखाएंगे। सो एट दैट टाइम आप यहाँ पर दिखाएंगे उस वक्त क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू प्लस पी ई, दैट्स इक्वल टू प्लस पी ई। तो ये फर्स्ट सब केस है। तो सेकंड सब केस आप अगर आप यहाँ पर दिखाएंगे, केस बी में अगर आप दिखाएंगे इफ थीटा इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखते हैं कि 180 डिग्री अगर होगा तो उस वक्त आप देखेंगे, तो अगर ये इसी पर हम दिखाएंगे, इसी चलो अलग ही दिखाएंगे, तो यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो अब पॉजिटिव जो है, तो पहले 0 डिग्री पर यहां था, पहले 0 पर यहां था, तो फिर 90 पर यहां पर पहुंचा, अब 180 पर तो यहां पर पहुंचेगा। तो आप यहां इस तरह दिखाएंगे, तो इसको आप लिखेंगे प्लस क्यू, तो यहां पर आप लिखेंगे इसको माइनस क्यू, तो इसको आप बोल्ड लाइन से दिखाएंगे यहां पर, ठीक यहाँ पर। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि क्या होगा, तो पहले इसको हम निकालते हैं यहाँ पर। सो पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू, सो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स PE into cos of 180 degree minus 1, cos of 180 degree minus 1. So we can write here U is equal to minus times PE into, so we know that cos of 180 degree that is equal to minus 1. So here it will be minus 1 minus 1, it will be minus 1, or we can write here U is equal to minus times PE into minus 2, or U is equal, so it will be plus twice potential energy PE. Not potential, so dipole moment and electric field. Dipole moment and electric field. So this is the पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि तो यहाँ पर होगा, जब इसको हम यहाँ पर लेंगे, अगर ये प्लस क्यू लेंगे तो इसको आप यहाँ पर माइनस क्यू लेंगे, सो एट दैट टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 2PE। तो ये इसके सब केसेस थे, 2 सब केस हमने यहाँ पर लिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट केस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।